Okay, so what we'll be doing today? So we'll be looking for that how we can create a Docker image of our application and how we can put that on ECR and how that ECR Docker image is going to use in your ECS. So suppose we have this application in our own machine. This is my own machine. I have my application here. This application has two web pages that I have shown you in your classroom also. Both are HTML pages. One is index, second is about us. Now to build a Docker image of this application, what extra file will be requiring? Which file that is required if you want to build a Docker image of this application? Docker file. So we'll be making a Docker file. Okay. So this is my Docker. This is my application, two-page application. Simply something is going to have this is the DevOps course or something else. Let me update that. So this is my single two-page, simple two-page application. If I'm going to launch this application now, so I'll get this Hello DevOps, and if I'll click here, I'll go for DevOps engineering course. Now I need to deploy this application into a Docker container. Okay, so first I need to convert that into Docker image. What is the normal process we do? If I need to build a Docker image of this and I need to share it with you, what process I need to follow? First I need to make a Docker image of this. How can I make this Docker image? So I have Docker in my system. Docker should be there in your system. So I have Docker in my system. What else? So in this using Docker file, using Docker, I can convert this application into a Docker image. I'll get a Docker image here. This is the Docker image of my web application. Then what next? I need to share with you so that you can also pull it and make a container of this. Generally, as of now that we have learned, we need to push that on Docker Hub. This is my Docker Hub. I have my account there. I'll make a repository there. I can push this Docker image there in this repository. Okay. The person who want to use that, what he or she need to do? He or she need to have Docker in his or her system, and he or she need to pull that and then create a container out of this. Okay, I want that. Okay, I'm going to make a container and everyone can access that container. Container I can create in my machine also, but this cannot be accessible by everyone. So if I want to make it accessible by everyone without asking them to install Docker in their machine and pull this Docker image, I can use AWS service. So now this is my AWS account. This is AWS and this is my AWS account. What I'll do, I'll use two services here. One is ECR and one is ECS. ECR stands for Elastic Container Registry, which is similar to Docker Hub. It is also a public registry, not public and private both.
So what you will do, the Docker image that you have created, you will put it here in this ECR, and using this ECR Docker image, you will use this service ECS. In ECS, we are going to create a container of this. It will give you a public IP of this container. That public IP and that port number you're going to share with your client, your users. Whoever will give that public IP with that port number, they will be able to access this image. So जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, welcome to Nginx or welcome to or your hello DevOps, that will come in their machines. ठीक है? So that we are going to implement in this lab. So I have this application. I have the Docker file of this. This is the Docker file for this. I'm taking Apache Docker image as a base image. I'm taking a root repository of Apache, because whatever you want to deploy in your Apache Tomcat or Nginx, that web application should be inside the root directory of this. So this is the root directory of Apache. So all files from source is going to copy it into this folder. Okay. अगर आपको चाहिए कि ये फाइल ना जाए डॉकर फाइल, देन अभी डॉकर फाइल भी जाएगी इसके अंदर. what things you can implement here. अभी क्या लिखा मैंने, डॉट एंड डॉट, इट मीन्स ऑल टू ऑल. सो आई डोंट वांट, तो ये भी जाएगी अभी तो. ऑल जाने से कोई नुकसान नहीं है, बट अननेसेसरी व्हाई शुड आई ओवरलोड माय इमेज. दैट इज वन. आप 2 बार कर दो इसको, कॉपी दिस. व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? एक लैब कराऊंगा उस पर भी, दैट इज डॉट डॉकर इग्नोर. ठीक है, डॉट डॉकर इग्नोर फाइल बनाओ वहाँ पे, इसको डाल दो, वो नहीं जाएगी आपके डॉकर इमेज के अंदर. विल डू दैट लैब. एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू कीप दिस वन ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्रिएट अ सर्विस. ECR ही मुझे वो कमांड देगा कि किस तरह से मुझे इसकी डॉकर इमेज बनानी है. ठीक है. सो आई विल क्रिएट एन ECR हियर. I'm making a DevOps repo, and if you'll see here, when you click on that, it is going to give you this view push commands. ठीक है, बट उससे पहले आपको AWS कॉन्फ़िगर करना होगा. ठीक है. So I'll do that AWS configure. I need to get my credentials. हाँ, ये 5 घंटे में अपने आप डिलीट हो जाए. Okay, so this is now these commands need to run. अब यहाँ पे आप जब अपनी रिपोजिटरी को सिलेक्ट करोगे तो उसकी अपने आप कमांड दे देगा वो. ये 4 कमांड रन करनी है आपको. दिस कमांड विल ऑथेंटिकेट यू. इस कमांड का आउटपुट आना चाहिए लॉगिन सक्सीडेड इफ एवरीथिंग गोज करेक्ट. सो अगर हमने ये ऑथेंटिकेट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया AWS CLI को, तो ये अपने आप लॉगिन पासवर्ड ऑथेंटिकेट कर देगा. द नेक्स्ट कमांड, बिल्ड दिस डॉकर इमेज. सो जिस नाम से आपकी रेपोजिटरी बनाई है आपने ECR पे, उसी नाम की एक डॉकर इमेज क्रिएट कर देगा.
So I need to be there in that folder where my Docker file is, and now it is going to start building. Docker image has built. Now I need to tag it. Why tag is important? हाँ, गलत होगा तो वहाँ पे नो, सही से आंसर बताओ, आता है तो बताओ। वाई आई नीड टैग इट, टैग में क्या जा रहा है, ये मेरी डॉकर इमेज बनी है ना, ये इससे टैगिंग कर रहा हूँ मैं। वाई, हाँ, ECR का या डॉकर हब का, जो भी आपको जहाँ भी पुश करनी है उसका पाथ देना पड़ता है आपको। पहला होता है आपका अकाउंट नेम, ठीक है, और दूसरा होता है स्लैश आपके रिपोजिटरी का नेम। सो ये मेरा अकाउंट नेम ये है AWS पे, ठीक है, 0790। इफ यू गोइंग टू सी हियर, क्या अकाउंट 0790, इसके अंदर मेरा ये ECR का पाथ है, ठीक है। तो ये पहले पूरा पाथ लेगा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये डॉकर इमेज, ये मेरी रिपोजिटरी का नाम है। तो इस नाम से मुझे टैग करनी होगी इमेज, तब ये जाके पुश करेगा वहाँ पे। देन इट इज गोइंग टू पुश दैट last command, push on Docker hub, sorry, on ECR. It is going to push on ECR since it was a lightweight Docker image, so it is going to push faster. Okay, so now Docker image came here, ये आ गया मेरा लेटेस्ट। अब इस Docker image को मुझे रन करना है ECS पे, so I'm going to launch ECS. I need to create a cluster here on ECS. Cluster is going to be the platform where your Docker will be available. On top of that, you have to create this container. Container is going to run inside task, बताऊंगा अभी। So let me first create a container, sorry, cluster, DevOps cluster। ये पहली बार फेल होगा मेरे लिए। टारगेट टाइप बनाना है, टारगेट बताया था मैंने, टारगेट पहले तो बोला होगा पढ़ने के लिए, शायद कुछ बोला था ना क्लास में। बोला था सर, ये काइंड ऑफ सर्वलेंस है क्या ये? दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ EC2, एडवांस टाइप ऑफ EC2 कॉन्फ़िगरेशन एक सर्विस है, ठीक है, जिसमें सेल्फ मैनेजेबल होते हैं आपके EC2 इंस्टेंसेस, थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल EC2 सर्विस। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस टारगेट टाइप। इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल इसमें बस आपको क्लस्टर का नाम देना है और टारगेट चूज कर लेना, वो भी बाय डिफॉल्ट आए। So till the time the cluster is coming, I need to make this task. इस टास्क डेफिनेशन में आप यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर ECR। यहाँ पे आप दोगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन कि आपको इस क्लस्टर पे कौन सा कंटेनर, कौन सा डॉकर इमेज का कंटेनर रन करना है। सेल क्रिएट अ टास्क, ओके। सो आई एम गोइंग टू गिव DevOps टास्क। यहाँ भी यही रखना, ये इस तरह की मशीन देगा आपके उस क्लस्टर में, लिनक्स 1 CPU कोर 3 GB बाय डिफॉल्ट, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पे आपको देना है सब कुछ। सो DevOps container, here that URI you need to give that you have pushed on your ECR। यहाँ पे ये आपका ECR का डॉकर इमेज है, ये आपको URI होता है, you have to take this URI, और ये URI आपको यहाँ देना है। ये URI आपका डॉकर हब के डॉकर इमेज का पाथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई डॉकर हब पे इमेज डाली हुई तो वो भी डाल सकते हो। यहाँ सीधे आप nginx भी लिख सकते हैं, nginx लेटेस्ट, सो वो डॉकर हब से ले लेगा। तो ये दोनों से कनेक्टेड है, ECR से भी और डॉकर हब से भी। फर्स्ट इट इज गोइंग टू सर्च ऑन, अगर आपने ECR का पाथ दिया तो ECR से ले लेगा, अदरवाइज उसके बाद वो सर्च करेगा डॉकर हब पे, ठीक है।
पोर्ट नंबर, क्योंकि अपाचे यूज़ कर रहे हैं हम, तो अपाचे का पोर्ट नंबर 80 है, तो 80 ही रहने देना इसको। अगर आपके कंटेनर में आपने कोई दूसरा पोर्ट एक्सपोज किया हो तो यू हैव टू गिव दैट पोर्ट नंबर हियर। तो सेम तो आप डोकरी में भी करते हो, लेटेस्ट का मतलब ही तो ये है, लेटेस्ट के अलावा 1.2.0 2.0 दे दो तो वो टैग इज काइंड ऑफ वर्जन ही है। सो आपने एक टैग टास्क बना लिया, इस टास्क को रन करना है आप क्लस्टर पे, ठीक है। सो उन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग का काम करेगा वो करेगा सर्विस। सर्विस विल टेक दिस टास्क एंड रन ऑन योर क्लस्टर। सो you'll go to your cluster, you'll go to your cluster now, cluster is up and running, एक्टिव है क्लस्टर आपका। ये आपको सर्विस बनानी है, सर्विस में आपको उस टास्क का रेफरेंस देना है। So you'll go to this सर्विस, यहाँ पे जितने भी आपने कंटेनर्स मैप कर रखे होंगे टास्क में, वो सारी टास्क यहाँ पे आ जाएंगी। अभी हमने एक बनाया तो वी आर गुड टू गेट दिस वन, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल बनाए हैं और उसका इसके वर्जन भी अलग अलग बनाए तो यहाँ पे आपको वर्जन दे सकते हो। सर्विस का नाम देना दे दो, अदरवाइज यू कैन कीप इट डिफॉल्ट। लॉन्च टाइप वारगेट ओनली, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, सिर्फ कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक सेट है। सो इट टेक टाइम, वंस इट इज गोइंग टू रन, यहाँ पे आपका पहले ये एक्टिव आएगा, फिर पेंडिंग में एक आएगा, फिर रनिंग में एक आएगा। जब रनिंग में एक आएगा इसका मतलब आपके कंटेनर पे एक सर्विस रन कर रही है जिसके अंदर एक टास्क रन कर रही है, वो टास्क आपका कंटेनर का इंस्टांस है। पेंडिंग में आ गया एक, अब थोड़ी देर में रनिंग में आएगा। रनिंग, इट मीन्स योर कंटेनर इज सक्सेसफुली रनिंग। अब आप सर्विस में जाओगे, सर्विस का नाम था ना आपका जो रैंडम दिया था इसने, देन इनसाइड दैट यू विल गो टू टास्क, इस सर्विस के अंदर एक टास्क रन कर रहा है, इस टास्क का ये टास्क है, टास्क की आईडी है। इस टास्क पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये पब्लिक आईपी मिलेगा, दिस इज दैट पब्लिक आईपी जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पब्लिक आईपी से आप एक्सेस कर लो, सो आइदर गो देयर और यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन ओपन दिस। अब क्योंकि 80 पोर्ट नंबर देने की आपको जरूरत नहीं होती, वो सीधा अपने आप ही लेता है। That let me check if that is required, ठीक है। अगर आपका एक्सेसिबल नहीं है तो क्या करोगे आप, सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक ऑन कर दोगे, तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा, एक नेटवर्किंग, ठीक है। गो टू द नेटवर्किंग और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा, ये रहा, गो टू सिक्योरिटी ग्रुप फॉर दिस क्लस्टर, then go to edit bound rules, delete that, make a new rule, all traffic anywhere, save this rule and now refresh this, ठीक है। अब ये कोई भी एक्सेस कर सकता है इस एप्लीकेशन को। So if I'm going to share this URL with you, हिट करो जरा अपने मोबाइल पे, आ रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी ये पब्लिक मेरे क्लस्टर में चल रहा है, ठीक है, जो भी इसको यूज करेगा दे कैन इजीली एक्सेस दिस कंटेनर, ठीक है। तो अब इस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं सीआर पे।
ठीक है, जो भी आपके क्लाइंट है वो रन एक्सेस करता है। तो यहाँ पे आपके अकाउंट की जगह आपकी कंपनी का अकाउंट होगा, ठीक है, उनके अलग क्लस्टर होंगे, हैवी वेट क्लस्टर होंगे, उसमें आप अपने कंटेनर को रन करा दोगे, तो जो भी आपके क्लाइंट होंगे वो सब उसको एक्सेस करेंगे उस एप्लीकेशन को। ओके, सो ये लैब आपको करनी है जब भी परफॉर्म करनी है।